بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے استاد محترم، اپنے شفیق مہربان استاد محترم کے پاس آیا ہوں اور حاضر ہوا ہوں دعا لینے کے لیے۔ ویسے بھی میں آتا رہتا ہوں اور استادوں کے پاس وہ آنا چاہیے، جانا چاہیے اور دعائیں لینی چاہیے، کیونکہ ہمیں بڑوں نے سکھایا ہے، بزرگوں نے سکھایا ہے کہ ادب جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے اور سب سے پہلی چیز ہے۔ اگر ادب ہے تو سب کچھ ہے، اگر احترام کا رشتہ ہے تو سب کچھ ہے، عزت اکرام اور ادب کا رشتہ ہے تو پھر سب کچھ ہے، کامیابی بھی ہے اور سب کچھ ہے۔ ویسے بھی ہمارا جو دین اور اسلام ہے وہ ہمیں ادب سکھاتا ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پورا دین جو وہ ادب ہی ادب ہے۔ اگر ادب ہے تو دین ہے، اگر ادب ہے تو اسلام ہے۔ تو لہٰذا جو بھی ہے، چاہے وہ ماں باپ ہے، چاہے وہ اساتذہ ہے، چاہے وہ بڑے ہیں، سب کا احترام ضروری ہے، سب کی عزت تکریم اور ادب ضروری ہے۔ تو اس لیے استادوں کے پاس جانا چاہیے، دعائیں لینی چاہیے۔ تو میں آج اپنے استاد محترم کی درگاہ میں حاضر ہوا ہوں دعائیں لینے کے لیے، کیونکہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے حکمت کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، اور یہ جتنے بھی شعبے ہیں تو یہ سرپرستی آپ ہی فرماتے ہیں اور اب بھی فرماتے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ ہی نے سکھایا ہے۔ حکمت میں جو بھی آج میں ہوں اور جتنا بھی مجھے علم ہے حکمت کے بارے میں، اور رب کائنات نے اس علم سے مجھے نوازا ہے، تو یہ آپ کی مہربانیاں ہیں اور آپ کی شفقتیں ہیں اور یہ آپ کا خلوص ہے۔ اس دور میں ایسے خلوص اساتذہ، مخلص اساتذہ اگر کسی کو مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت زیادہ کامیابی کا جو ہے وہ راز ہے۔ تو الحمدللہ میرے جو استاد محترم ہیں بہت زیادہ علماء کے اور بہت زیادہ حکماء کے استاد ہیں، لیکن میرے اوپر ان کی بہت زیادہ مہربانیاں ہیں، شفقتیں ہیں، اور بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور شفقت فرماتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ میرا احساس بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں دعائیں لینے آیا تھا، تو یہی میں نے عرض کی کہ جو میرے چینل کے ناظرین ہیں ان سے اگر آپ چند جملے گفتگو فرمائیں اور چند جملے آپ کے جملوں سے میرے چینل کے ناظرین بھی مستفیض ہو جائے تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی، اور اس وجہ سے میرے چینل میں مزید برکتیں آ جائے گی۔ تو میں نے عرض کی چونکہ آپ بہت زیادہ مہربان ہیں تو آپ نے فوراً فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، میں ضرور آپ کے چینل کے ناظرین سے مخاطب ہوں گا۔ تو آج میں صرف دعائیں لینے آیا ہوں، تو بطور برکت میرے استاد محترم کہ جتنا بھی آج میں حکمت میں ہوں تو یہ ان کی برکتیں، سارا کچھ مجھے یہاں سے ملا ہے، اور کافی دیر سے ہمارا ایک یہ رشتہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ یہ آداب، عزت، احترام کا جو رشتہ ہے یہ اسی طرح قائم رہے، اور رب کائنات مجھے کما حقہ جتنے بھی میرے اساتذہ ہیں، ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، ان کے آداب، عزت، احترام کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ آج کل ایک دو ویڈیو سلاجید کے موضوع پر میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اور آج کل میرا یہی موضوع چل رہا ہے سلاجید کے بارے میں۔ تو میں نے استادوں سے عرض کی کہ چونکہ یہی میرا موضوع چل رہا ہے، دو ویڈیو تقریباً اپلوڈ ہو چکی ہے، تو آپ بھی چند جملے برکت کے لیے سلاجید ہی کے متعلق میرے چینل کے ناظرین سے ارشاد فرمائیں، تاکہ ہمارا مقصد بھی پورا ہو اور ہمیں برکتیں بھی مل جائیں۔ تو چند جملے ماشاءاللہ ناظرین، خطیب پاکستان حضرت علامہ حکیم قاری شیر اسلم قادری صاحب ماشاءاللہ جی ایک مایا ناز طبیب ہیں اور بہت بڑے خطیب ہیں ہمارے شہر شیخوپورہ کے،
तो इन्होंने अपना चैनल भी बना लिया है हिकमत के हवाले से, क्योंकि लोग पहले मुस्तफीज होते थे, अब माशाल्लाह इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है और अपना यूट्यूब का चैनल भी इन्होंने बना लिया है। तो आपको यूट्यूब पे चैनल बनाने की बहुत बहुत मुबारकबाद हो जी। अल्लाह ताला आपके इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह इनके नुस्खा जात मैंने चंद एक सुने हैं, तो वाकयातन ये इल्मी गुफ्तगू करते हैं और हर मर्ज की बिल्कुल मुस्बत तफसील भी बयान करते हैं और साथ नुस्खा भी अपलोड कर देते हैं। तो यकीनन ये वसी ज़रफ़ हैं जी, वसी उल क़ल्ब हैं। अल्लाह ताला जरूर इनको ये दुआम बख्शेगा, तरक्की अता फरमाएगा। एक वक्त आएगा जी इंशाल्लाह इनका चैनल टॉप करेगा, इंशाल्लाह बड़े बड़े चैनलों का मुकाबला करेगा और हिकमत के हवाले से, फिर दीनी गुफ्तगू के हवाले से, कुरान और हदीस के हवाले से, इसके मुस्तफ़ा के हवाले से, हर वो चीज जो आपको चाहिए, आपके बच्चों को अच्छी तरबियत चाहिए और ऐसे ही उनकी सेहत का ख्याल चाहिए, घरेलू खवातीन हो, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर मकतबा फिक्र के आदमी इंशाल्लाह उनको इस चैनल से जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं तो हजरत अल्लामा कारी साहब के चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इनको लाइक भी कर दिया करें। यकीनन ऐसे लोगों को लाइक देने चाहिए जो लाइक के हकदार होते हैं। ये देखिए, ये नाच गाने वाले, ये दूसरे लोग जो होते हैं ना बेदीन किस्म के, उनको हम जब लाइक देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हम उनके गुनाह में ये शामिल हो जाते हैं। नेक लोगों को अगर आप लाइक देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप उनके अच्छे अमाल में, अखलाकी हसना में, उनकी नेकियों में आप सदका जारिया में शामिल हो जाते हैं। बहरहाल जी इंशाल्लाह जरूर आप देखेंगे चंद दिनों में अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए, इनके सब्सक्राइबर माशाल्लाह 200 से ज्यादा हो गए हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो इंशाल्लाह ये बड़ी तेजी से आगे जा रहे हैं। अनकरीब इनका इंशाल्लाह ये चैनल मोनेटाइज भी होगा और आप हजरात करेंगे, आपकी मोहब्बत होगी, आपका प्यार होगा, आपकी लगन होगी इनके साथ, तो इंशाल्लाह आप नुस्खा जाते से मुस्तफीज भी होंगे साथ साथ, और इनके चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लिया करें। अच्छा, अब आते हैं नुस्खा की तरफ। तो हजरत अल्लामा ने चूंकि पहले एक नुस्खा बयान किया हुआ है अपने चैनल पे सलाजीत के हवाले से। सलाजीत वाकई एक जबरदस्त चीज है जी, खुसूसन अयाम सरमा की जबरदस्त चीज है, ताकत के लिहाज से, कुव्वत के लिहाज से, फिर हर तरह की कुव्वत के लिहाज से। तो खुसूसन सर्द अमराज के लिए, कमजोर घरेलू खवातीन के लिए, कमजोर मामर अफराद के लिए, कमजोर बच्चों के लिए, इसकी जो पोटेंसी है, खुराक है, वो आगे पीछे होती रहती है। तो इस हवाले से आज मैं बेहतरीन एक नुस्खा, देखिए सलाजीत है क्या, ये पहाड़ों का अरक है, पहाड़ों की गूंद है। हमने ये देखा है ना अक्सर कीकर, देसी कीकर या और दूसरे जो दरख्त होते हैं नबाताती, उनसे उसमें गर्मा में जो गूंद निकलती है उनका रुब सा निकलता है, वो उनका लुबे लबाब होता है। तो पहाड़ों की ताकत से तो कोई भी इनकारी नहीं है। पहाड़ों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बल्कि जो भी कायनात के खजाने हैं ना, वो पहाड़ों में छुपा रखे हैं। ये सोना है, ये चांदी है, ये गंधक है, ये जनाब जितनी भी धातें हैं, जितने विटामिन है, कैल्शियम है, कुदरत ने उन पे ये दाबू रख दिए, पहाड़ों के अंदर इनको समो दिया। तो यकीनन ये मादनियात का खजाना कह लें, ताकत का खजाना कह लें। अच्छा, इनका फिर जो अरक होगा, जो इनका पसीना होगा, जो इनका रुब होगा, उसमें फिर कितनी ताकत होगी, ये आज तक तो हम एनालिसिस नहीं कर सके कि कितनी सारी ताकतें अल्लाह ने सलाजीत में रखी हैं। और ये बाद इलाकों के पहाड़ों में पाई जाती है, बाद इलाकों में नहीं होती। तो ये पहाड़ों की गोंद है। हाँ, इसमें ये जरूर है कि हाँ कोई कंकर वगैरह शामिल ना हो, तो इस लिहाज से आप जहां से भी सलाजीत लेते हैं ना, पहले आप उसे मुसफ़ा करें। मुसफ़ा करने का तरीका क्या है? तो वो मुसफ़ा करने का तरीका ये है कि आप आबे अदरक ले लें, निकाल लें, हावन दस्ता में कूटें अदरक लेकर, कपड़े से निचोड़ेंगे, पानी में आपको मिल जाएगा। तो वो पानी आप लेकर ना, तो सलाजीत में खर्ल करेंगे। तो सलाजीत में जब आप खर्ल करेंगे ना, एक तोला आपके पास सलाजीत है,
तो 2 तोला पानी इस पे खर्ल कर दें। इसमें क्या होगा, जो कैंकर होगा ना, कैंकर जो नुकसानदेह पथरी वगैरह का मूजब बनता है, वो नीचे बैठ जाएगा। अच्छा, अब आप इसको बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, हर तबा के लिए मुफीद बनाना चाहते हैं, इसकी ताकत मजीद बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आ जाए नुस्खा की तरफ। अच्छा, इसमें आप लेंगे जी 2 तोला लेंगे आप लौंग, 2 तोला लेंगे आप ये जिसे हम अदरक कहते हैं ना, इसे सुंड सुंड कहते हैं। जब ये खुश्क हो जाता है ना, तो सुंड का पाउडर ले लें 2 तोला, और आप ऐसे ही 2 तोला लौंग का पाउडर ले लें। अच्छा, 2 तोला ही आपके पास सलाजीत मुसफ़ा हो, आपके पास 3 तोला होगी तो फिर 2 तोला निकलेगी ऊपर से नथारने से ना। अच्छा, जब इन 2 पाउडरों को इकट्ठा करेंगे, सुंड और लौंग के पाउडरों को, उसमें आप ये कर्ल कर दें, उसमें कर्ल करेंगे तो फिर आपको ये गोलियां बांधने के काम भी आएगी, और उसमें ताकत भी बढ़ जाएगी, सुंड की ताकत भी शामिल हो जाएगी, लौंग की ताकत भी शामिल हो जाएगी, और इसकी कुव्वत ताकत, इसका जिस्म भी अंदर रहेगा। गोलियां आप बनाएंगे जी चने बराबर गोलियां बासानी इंशाल्लाह इस तकनीक से, इस तरीके से, इस नुस्खा की बदौलत आप बना सकेंगे। ये गोलियां आप संभाल रखें। अच्छा, ये वो गोलियां हैं जो हर तबा के लिए मुफीद है, बच्चे भी खा सकते हैं, घरेलू खवातीन भी खा सकती हैं, मर्द भी खा सकते हैं। तो हज़रत अल्लामा ने पूछा था कि घरेलू खवातीन की ताकत के लिए, जी 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 थकावट, अक्सर औरतें थकावट का शिकार हो जाती हैं, जी जी तो उनको अगर ये दूध पत्ती या चाय वगैरह तो आम घर में पी जाती है, घर में पी जाती है, खुसूसन सर्दियों में, जी, तो एक गोली अगर साथ ये खा लिया करें तो फिर तो सोने पे सुहागा, नूरों अला नूर, तो फिर तो ये जबरदस्त है जी। अच्छा, बच्चों के लिए छोटी गोली बना ले आप, काली मिर्च के बराबर गोली बना ले। जी जी अच्छा, इससे होगा क्या, इससे जो सर्द अमराज है ना, नज़ला, जुकाम, खांसी, ये सर्दी लगना, ये मतलब दर्दों का हो जाना, जिस्म सर्द हो गया है जी, और जिस्म सर्द होने की वजह से सर्दी भी ज्यादा लग रही है, जी खून की कमी वाले अफराद भी इस्तेमाल करते हैं, सर्द बीमारियों वाले, इसमें लकवा आ जाता है, राशा आ जाता है, फालज आ जाता है, ये तमाम अमराज के लिए ये बेहतरीन गोलियां बन चुकी हैं। अच्छा, जिनकी उम्र ज्यादा है उनको आप थोड़ी सी ज्यादा देंगे, ज्यादा इस्तेमाल कराएंगे। सलाजीत का यही होता है कि आप उनको एक टाइम 2 गोलियां देंगे, चने बराबर आपने गोलियां बनानी है जी, 2 गोलियां एक टाइम देंगे, दूध पत्ती से, ये ज़हन में रख लें। इसके बाद ठंडा पानी आपने नहीं पीना, और ये फौरन आपके जिस्म को हीट देती हैं, गर्म करती हैं। जो आप दूसरी अद्वियात 2, 4, 5 खुराकें लेते हैं, आपका जिस्म उतनी ताकत पकड़ता है ना, इसका ये खासा है कि एक खुराक से ही आपका जिस्म इंशाल्लाह हरारत में आ जाए, हरारत गरीजी। कोई आपने कोई पॉइजन, कोई आपने कोई जहर वाली चीज या कोई नुकसानदेह चीज, कोई केमिकल आपने नहीं लिया, बिल्कुल ये प्योर चीजें हैं। तो ये 2 गोलियां बड़े मामर अफराद के लिए, 40 साल से जो अबव हैं, 40 साल से ज्यादा हैं, वो 2 गोलियां इस्तेमाल करें सुबह, 2 गोलियां शाम, खाने के तकरीबन 1 घंटा बाद। जी जी, तो इंशाल्लाह उनको बहुत ज्यादा अमराज में अफाका होगा, दर्दें भी खत्म होगी, अपने अंदर एक तवानाई महसूस करेंगे, तवानाई महसूस करेंगे। जो बाजारी गोलियां, टीके लगाते हैं ना, इंजेक्शन लगवाते हैं, वो आप छोड़ दें यार, इनकी तरफ आ जाएं। खुसूसन सर्दियों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है। तो हजरत अल्लामा के चैनल पे इस तरह के आपको इंशाल्लाह 1 नहीं 2 नहीं बेशुमार नुस्खा जात मिलेंगे, और बिल्कुल प्योर देसी नुस्खा जात मिलेंगे। इंशाल्लाह आपका फायदा होगा। ये आप घर में बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप मुआलिज हैं, तबीब हैं, हकीम हैं तो फिर ही आप बनाएंगे, आप बना सकते हैं। सुंड क्या है, हर घर में मौजूद होती है, पंसारियों से ले लें। लौंग है, हमारे किचन की आइटम है, आप इनको इस्तेमाल में लाएं, साथ इनके सलाजीत मिला लें, तो इस तरह सलाजीत मुसफ़ा भी हो जाएगी और ये कारआमद भी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इससे आपका फायदा ही फायदा होगा, नुकसानदेह चीजें इनसे निकल जाएंगी। ठीक हो गया जी? जी जी, चलो माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की